می رک گیا تھا لیکن اس کے آثار نہیں گئے تھے۔ شفاف شیشہ ابھی بھی بوندوں کے داغوں میں گھرا ہوا تھا۔ پردے ہنوز سرکے ہوئے تھے اور آسمان پر گرے بادلوں کا راج دیکھا جا سکتا تھا۔ ہوا میں شدت ہے یہ بھی واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں لب بستہ سی کھڑی تھی، نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے پاؤں کے پاس کھڑکی کے انتہائی دائیں جانب گیلی تصویر دیوار کے سہارے رکھی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں کسی کا چہرہ مسکراتا تھا، آنکھوں میں ایک جہان آباد تھا۔ وہ چہرہ ایک مرد کا تھا، وہ مرد جو محبت کرنا جانتا ہے، اسے نبھانا جانتا تھا، وہ مرد جو دھوکہ دینا بھی جانتا ہے اور اس دھوکے کے ساتھ سر اٹھا کر جینا بھی۔ تم حامی بھر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درخت ہوا کے دوش پر جھول رہے تھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ ایسا کرتے ہوئے اس پر لگے پرسیمونس جاپانی پھل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، تازہ سرخ رس سے بھرے جاپانی پھل۔ یہ سب بہت مشکل ہے سلطان، ممی نے میری شادی فکس کروا دی ہے۔ 10 منٹ پہلے ہوئی اس کی اور ایبک کی گفتگو اس کی آنکھوں میں موجود تھی۔ بوندوں کے دھبوں سے ڈھکا اس کا شیشہ باہر کا منظر بہت دھندلا سا دکھا رہا تھا۔ جاپانی پھل کا وہ درخت جو کبھی ان کے دادا نے لگایا تھا اب کافی بڑا ہو چکا تھا، اتنا بڑا کہ اس کی ٹہنیاں زمین کو چھونے لگی تھیں۔ وہ ماں ہیں، ان کا احترام واجب ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ آپ ایک ایسے انسان سے شادی کر لیں جس کو کبھی دیکھا یا جانا نہ ہو، جو بالکل اجنبی ہو؟ اور مکڑی کے جالوں جیسی ہے یہ دنیا، ریشمی مگر جان لیوا، خوبصورت مگر پرخطر، نرم پر ظالم۔ میں عجیب سے دو راہے پر ہوں سلطان، ایک ایسے انسان سے کیسے شادی کی حامی بھر سکتی ہوں جس کو میں نے چند دنوں پہلے ہی بس دیکھا ہو؟ انتہائی قدم اٹھانے کے لیے انتہائی جذبہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ گندم کے ساتھ جو تو پستی ہے، بدلے میں کوئی ایک بے قصور تو مارا جاتا ہے نا؟ ظاہر ہے تمہاری بات درست ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تنگ کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اب کبھی اصرار نہیں کروں گا۔ کال منقطع ہو گئی تھی۔ کال کٹنے کے ساتھ چھوٹے دل کی انیشا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی اسے شادی کے لیے اصرار نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس سے شادی کر لے جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ آج کے دور میں یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا، بلکہ یہی تو ہے جو صحیح ہے، محفوظ ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے نام پر منگنی کرنا، ملنا، ڈیٹ اور پھر وہ تعلقات جو شوہر بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں، کیا جائز ہیں؟ چلو دین کو چھوڑ دیتے ہیں اس بحث میں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، فقط ایک انسان ہونے کے ناطے، کیا یہ سب ٹھیک ہوتا ہے؟ ضمیر مطمئن ہوتا ہے ان سب چیزوں پر؟ انڈرسٹینڈنگ کے نام پر ایک دوسرے کو یوز کرنا اور پھر چھوڑ دینا، انسانی طور پر کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ کبھی پوچھیے گا ضمیر سے، محاسبہ کیجیے گا، جواب مل جائے گا۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی، دو زانوں اس تصویر کے سامنے آ کر بیٹھی جسے اس نے دل کے قلم سے روح کی دنیا میں سجایا تھا۔ بھوری آنکھیں، مسکاتا چہرہ، نوڈلز بال۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ وہ اس تصویر سے مخاطب تھی، جیسے تمہارا چہرہ، تمہاری آواز اور تمہارے بال نظروں کے سامنے سے گزرے ہوں۔ کیوں تم جانے سے لگتے ہو؟ تصویر گیلی تھی لیکن اس کی انگلیاں اسے چھونے کو بے چین ہو رہی تھیں۔ اس نے اسے نہیں چھوا۔ حسرت کو مارنا بھی ایک آرٹ ہے، وہ آرٹ جو آپ کو سرخ روئی کی منزل تک لے کر جاتا ہے، مطمئن کرتا ہے اور شاد بھی۔ جو بھی ہو، پر میں سوچوں گی اس بارے میں، تمہاری طوفانی محبت کے بارے میں، تمہارے پروپوزل کے بارے میں، تمہاری نیت کے بارے میں۔ وہ اس سے مخاطب تھی جو وہاں نہیں تھا مگر تھا، اس کی تخیل میں جاویداں تھا اور اس سے ہم کلام تھا۔ تمہاری باتیں، تمہارا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم واقعی مہذب خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے شادی کی پیشکش کی ہے، یعنی تم اپنے جذبوں میں کھرے ہو۔ میں ان جذبوں کے بارے میں بھی سوچوں گی، میں سب چیزوں کے بارے میں سوچوں گی۔ وہ جس سے محو گفتگو تھی، وہ انسان اس کی سگی بہن کے ساتھ پور اس کی محبت میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ سفید ہائی نیک اور جینس میں، گلے میں لمبی چین پہنے ہوئے وہ اسے تک رہا تھا، جس کی آنکھوں میں سامنے والے کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کبھی الاف بھی اسے نفرت کرے گی، اسے سوچا تک نہ تھا۔ میں تمہاری آفر قبول کرتی ہوں،
وہ اس کی بات پر ہنسا تھا، سر کو پیچھے گرا کر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ پھر رکا۔ ہنستے ہوئے اس کا منہ کھلا تھا، زبان کو نچلے ہونٹ پر پھیرتے ہوئے اس نے منہ بند کیا۔ جب بولا تو آواز بہت پسماندہ سی تھی۔ بہت عرصے پہلے کسی نے اسی طرح کسی کو کہا تھا، تب ریڈ الرٹ جاری نہیں ہوا تھا، بس مجبوری تھی، غریبوں کی مجبوری۔ آخری جملہ وہ آگے کو جھک کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ پتہ ہے، وہ یک لخت پیچھے ہوا۔ یقین نہیں آتا کہ ملک کے آنر اور سابق وزیر کے بیٹوں کی جان اپنی بہن کی عزت سے زیادہ عزیز ہے تمہارے بھائی محترم کو۔ ایلاف نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی اور غصے میں پھنکارتے ہوئے بولی، میرے بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا تم، وہ تم جیسا نہیں ہے جو عورتوں کا سودا کرے۔ وہ مرد ہے، تبھی جوان مردی سے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑا ہے۔ تم بھی مرد ہوتے تو ایسا ہی کرتے۔ ایبی کے سر میں درد کی لہر اٹھی اور بڑی شدت سے اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا سودا کر سکتا ہوں؟ اس کا تنفس تیز ہوا تھا، درد کی رفتار بڑھی تھی۔ تم ایسا کر چکے ہو ایبک سلطان، خرید رہے ہو مجھے ان 4 لوگوں کی جانوں کے عوض۔ درد کی لہر پھر سے ٹھاٹھے مارنا شروع ہوئی۔ سامنے بیٹھی جان سے عزیز لڑکی اسے ہولے ہولے دکھنا بند ہو رہی تھی۔ ایلاف اس کی بگڑتی حالت پر کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ وہ تکلیف دہ مسکان کے ساتھ اسے کہہ رہا تھا، ایبک سلطان مر سکتا ہے، لیکن اسے بولنے میں دشواری ہوئی، چہرہ سست پڑ گیا تھا، ننھے ننھے پسینے کے قطرے اس کے پورے منہ پر ڈیرا جما گئے۔ اپنی ایلاف کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے لفظوں پر کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی۔ وہ لوگ جہاں بیٹھے تھے وہاں لوگوں کی ریل پیل کم تھی، سکون تھا اور خاموشی بھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے غلط بات کی۔ اس کی حالت ضرورت سے زیادہ بگڑ رہی تھی، ایک اور اٹیک یہ اس کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈر گئی، گھبرا گئی۔ محبت کا کب سودا ہوتا ہے؟ ایلاف میز پر گرتے ہوئے اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے آخری بار اسے دیکھتا وہ کہہ رہا تھا۔ ایلاف نے اپنا پرس اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہاں کون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، آندیاں سی تھیں جن کو نظر انداز کر کے وہ مین روڈ تک آئی تھی۔ اس کی کار گیراج میں کھڑی ہے، وہ بھول گئی اسے کہاں جانا تھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد وہ یہ بھی بھول گئی۔ فقط یاد تھے تو ایبک کے الفاظ، اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو کمال کا جھوٹا تھا، اور اگر اسے سچ کہا تھا تو وہ کہاں تھی سچ میں؟ کیا تھا جو اسے چھپایا جا رہا تھا، یا پھر کچھ نہیں تھا جو پوشیدہ تھا؟ سب سامنے اور واضح تھا، بالکل واضح۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، پسینہ وہاں موجود تھا۔ نڈر ایلی جانے کہاں چلی گئی تھی؟ ڈرپوک ایلاف پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ محبت، ایک یہی لفظ تھا جو چاروں اور سے گردان کر رہا تھا۔ ایبک کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے سر پیچھے گرایا اور آنکھیں موند لیں۔ کیا اس سب کا کنیکشن ماضی سے ہے؟ اگر ہاں تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ نہیں، ماضی نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ ایموشنل کارڈ کھیل کر وہ مجھے اس کے جال میں پھنسانے کی صحیح میں ہے، لیکن میں نہیں پھنسوں گی۔ میں اس کی یہ خواہش ہی رہنے دوں گی۔ آنکھیں بند کر کے وہ خود سے ہم کلام تھی، کچھ بھی نہیں تھا جو اسے یاد آ جاتا۔ سوچوں کا پردہ بالکل خالی تھا، یہاں جیسے وہاں کبھی بھی کسی نے خوبصورت یادوں کے غبارے نہیں لگائے ہوں، پھول نہیں چپکائے ہوں، یا پھر رنگ برنگے ستارے نہیں جگمگائے ہوں۔ آپریشن تھیٹر میں کھلبلی کا سماں تھا۔ وہ جو سب کو ٹف ٹائم دے چکا تھا، ٹف ٹائم سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی حالت سے تشویش میں مبتلا تھے، کسی بھی وقت ذرا سی بھی کوتاہی اس کی جان لے سکتی تھی۔ نالیوں میں جکڑا وہ وجود جسے سمر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اس کا جانی دشمن نکلے گا پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کی فائل ہاتھ میں تھامے لب بستہ سا تھا، آنکھوں کی پتلیاں ایک ہی جگہ ساکن تھیں اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا تھا۔ وہ بیجنگ حکومت کی جانب سے آیا تھا تاکہ روسی سفیر کو زمین ذات سے چھڑوایا جا سکے۔ روسی سفیر زمین ذات کے پاس نہیں، یہ سب فقط ڈرامے کے لیے کیا گیا ہے۔ جب پتہ چلا تو ایک تیز لہر تھی جو سمر کے دل میں اٹھی تھی۔ پہلے اسے زمین ذات زندہ چاہیے تھا، یا پھر اس نے زندہ یا مردہ پر اکتفا کیا، لیکن اب اس سفید فائل کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے
وہ उसके सही सालम हाथ लगने की ख्वाहिश कर रहा था, ताकि उसे खुद बेदर्दी से मौत के घाट उतारे। डॉक्टर जोसेफ और मिसेस जोसेफ वहां खामोशी से बैठे हुए थे। बीजिंग की पुलिस ने उन्हें तलब किया था। वो प्रोफेशनल लोग थे। जोसेफ का एक नाम था, रुतबा और मकाम था, जिसकी वजह से उनसे बहुत लिहाज से बात की जा रही थी और वो भी बड़े तहम्मुल से हर बात का जवाब दे रहे थे। ऐबिक सुल्तान, उसके बारे में जानना है मुझे। फाइल को एक साइड पर रखते हुए खूबरू सा लड़का उनसे बाज पुरुष पर उतर आया। ये पहली मुदाखलत थी जो आधे घंटे में उसने की थी। जरूर, मैं बताने में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? मुझे बिल्कुल याद नहीं है उसके बारे में। फ़कत इसके कि वो एक मामूली सा केस था जिसे मैंने डील किया था। ग़ालिबन कोई एक्सीडेंट या मेमोरी लॉस। हाँ, वो मेमोरी लॉस केस था। देखो, लिखा है उस पर। अपने हाथ की फ़ाइल तैयार करदा फ़ाइल के एक पेज को आगे खिसकाते हुए जोसेफ़ ने संजीदगी से कहा। समर ने फ़ाइल पर नज़र नहीं डाली। वो तो यकटक यूसुफ़ को ही देखे जा रहा था। सुना था फॉरेनर्स बहुत पक्के होते हैं अपने अकायद को लेकर। फिर आप तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। आपके लिए तो दीन की वैल्यूज़ ज़्यादा अहम होंगी। झूठ गुनाह है, कबीरा है, ये तो पता होगा, नहीं? जोसेफ उसके बर्फीले तर्ज पर पीछे को हुए। एक नज़र अपनी बेगम पर डाली जो तस्बीह पढ़ने में मगन थी। फिर बोले तो आवाज़ खासी मुतवाज़न थी। मैं जानता हूँ बेटा, झूठ, ज़ना, कत्ल, फहाशी ये सब गुनाह कबीरा हैं। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। समर ने जबड़ा भींचा हुआ था और आंखें मीची हुई थी। यानी कि आप एबिक को नहीं जानते? फ़कत एक मरीज़ के अलावा नहीं। समर ने मिसेस जोसेफ की ओर नज़र डाली। उनके लब पुरस्रार अंदाज में फैले थे। इस मुस्कुराहट का मफ़हूम समझते हुए जोसेफ तल्ख़ी से मुस्कुराकर बोले, लेडी खदीजा की यहाँ बहुत वैल्यू है। अगर तुमने इन्हें अरेस्ट किया, तो बीजिंग की सुनामी तुम्हें बहा ले जाएगी। समर टांगों पर हाथ बजाता हँसा, फिर कदरे आगे हुआ, झुका और सरगोशी करने लगा। मुझे पहले का मज़ा लेना है। हुँ? वो एक झटके से खड़ा हुआ था। इन सबके सरों पर जलता बल्ब और तफ्तीशी रूम की से स्टील की दीवारें समर की आवाज़ सुन रही थीं, जो कि ये थी। मिसेस जोसेफ को बाइज्जत तौर पर अपनी तहवील में लो, बहुत कुछ है जो इनसे जानना है। फैसला सुनाकर सर पर कैप रखे वो दरवाजे की ओर बढ़ा था। सिपाही ने उसे सल्यूट का और स्टील का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे कमज़ोर मत समझो जोसेफ, हालात का सामना करना आता है मुझे। इस सारे अरसे में वो भी पहली बार ही बोली थी। सर से लेकर पैर तक स्याह चूहे में मलबूस मिसेस जोसेफ का झुर्रियों ज़दा चेहरा पुरज़्म था। उन्होंने उनके नहीफ हाथ थामे जिन पर गुजरे वक्त के आसार रकम थे। मैं बहुत जल्द लौटूंगा, एतमाद की गिरफ्त उन्हें थमाते हुए वो कह रहे थे। मिसेस जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। जानती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो दोनों जानबूझकर एबिक की बात नहीं कर रहे थे, जिसे वो जानते ही नहीं थे। भला उसकी बात क्यों करते? क्या वो उसे जानते थे? श्श, तुम कुछ भी कर लो एबिक, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सेल फोन पर नजर डालते हुए वो सोच रहे थे। उनकी सोच पिदराना थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सगे बाप की अपनी औलाद के लिए होती है, बेगर्ज और साफ। हम इनके बारे में पुरुमीद नहीं हैं। अगर मज़ीद इसी तरह के चंद और अटैक्स हुए तो यकीनन इनका बचना मुश्किल है। बुरहान के दिमाग में डॉक्टर के कई अल्फाज गूंज रहे थे। वो एबिक के पास उसका हाथ थामे बैठा था। वही एबिक जिसे दुनिया की होश थी और ना अपनी खबर। एक वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूंगा। इस वक्त से पहले मेरी दिली ख्वाहिश है इलाफ सब जान जाए, उस स्क्रिप्टेड फाइल को रिस्टोर कर ले और मेरे पास आए, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले आया करती थी। बुरहान के हाथ में एबिक का हाथ था, तो दूसरे में सेल फोन। उसे फैसला करना था, जल्द या बदेर उसे एबिक के हक में फैसला करना था और उसने कर लिया। देर नहीं लगाई, फौरन फैसला कर लिया। उसने एबिक के नंबर से इलाफ को कुछ भेजा था, कुछ ऐसा जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। वो जो हकीकत थी, वो जिसमें माजी कैद था, तल्ख, हसीन, शरारती और दुखों से भरा माजी। गफूर साहब तैश में यहाँ से वहाँ मंडला रहे थे। वो हाल ही में लंदन से लौटे थे। लौटने के बाद इतनी बड़ी खबर उन्हें मिली थी कि वो बिफर ही गए। हाथ में सिगार थामे उनका गुस्सा देखने के लायक था। शशुपंज में मुब्तला अनीशा वहां खड़ी थी कि आया वो इलाफ को बुलाकर आए या ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे।
अभी कल ही गफूर साहब की आवाज़ लाउंज के दरों दीवार में गूंजी। कल ही मैं मोहतरमा की खबर पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने साबिका मजिस्ट्रेट के किरदार की धज्जियां बखेरी हुई हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं दुश्मनियां पालने का अंजाम क्या होता है? वो रुक कर झुक कर सीने पर उंगली ठोकते हुए जरीना से सवाल कर रहे थे। वो नॉर्मल थी या फिर जाहिर कर रही थी? उनके बैठने का अंदाज बहुत आम सा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो और वो सब सिचुएशन से नावाकिफ हो। मैं बताता हूँ, बल्कि पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने अपना सेल निकाला और स्क्रीन खोलकर ऊंची आवाज में बोले। एली मोहतरमा को अपने लफ्जों का हिसाब देना होगा। वो कौन है? ये बात जल्द ही मंजर आम पर होगी, और ये मेरा वादा है। वादा किया है बेगम साहिबा उन्होंने। इस बात का मतलब समझती हैं आप? जरीना ने अपने अंगूठे का नाखून दानों के दरमियान हल्की सी खला में अड़ाया हुआ था। शोहर की बात पर वो उसे वहां से हटाकर हाथ खोले कह रही थी। सो व्हाट? ऐसे हजारों वादिल हजारों लोग करते हैं, सबसे डर जाए हम? और आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? हमारी फैमिली का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। और हमारा समर, क्या आपको लगता है वो अपनी बहन को मंजर पर आने देगा? बेकार में टेंशन लेते हैं आप। गफूर साहब बेगम के इतने कूल रवैये पर खून आशाम निगाहों से उन्हें घूर रहे थे। उनकी इसी शय ने बहुत पहले उनसे उनका लख्ते जिगर छीन लिया था, और अब भी वो वैसी ही भला की पुरसकून थी। उन्हें हैरत हुई। मुझे ये यकीन करने में दुश्वारी हो रही है कि तुम इब्राहिम की मौत से भी कुछ नहीं सीख सकी। वो क्या चीज़ है जो तुम्हें मोहतात रहना सिखा देगी? वो लड़का था, सब सह गया। ये लड़की है, टूट जाएगी। और जरीना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर बर्छी चला दी हो। आंसू तेज रफ्तारी में उनकी पलकों की बाढ़ तोड़कर गिरे थे। दुख मोज मुंह जोर घोड़े की तरह दौड़ उठा। उनका प्यारा राहिम उनकी आंखों में आन समाया था, हंसता मुस्कुराता, चौड़े वजूद का मालिक, दराज का राहिम जिसे हर वक्त च्युइंगम चबाने का, मुस्कुराने का वक्त था। जो उनकी जान तो बहनों का मान था, समर से बड़ा और जिम्मेदार भी। डैड प्लीज, अनीशा ने उन्हें टोका था। जरीना के अल्फाज उसे बेरुहानसा कर गए। आप मुझे दुख नहीं दे सकते गफूर। आप मुझे राहिम का दुख नहीं दे सकते। गफूर ने आंखें बंद करके खोली। उनका बेटा उनकी आंखों में भी था, उनका लखते जिगर, उनकी जान। इसलिए कह रहा हूँ, रोक लो इलाफ को। राहिम के बाद उसका दुख हम सह नहीं पाएंगे। अनीशा को जिंदगी में दूसरी बार डैडी की आंखों में आंसू नजर आए थे। पहली बार वो राहिम के मुर्दा वजूद को हाथों में लिए रोए थे, और आज वो सालों बाद उसका जिक्र करते हुए रूहान से हो गए थे। जरीना ने तो आतर से गिरते आंसुओं को रगड़ा। मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैं उस पर नहीं रोऊंगी, और उसकी वो ख्वाहिश भी नहीं दबाऊंगी जो इलाफ को लेकर उसे थी। वो कहता था उसे अपनी बहन की आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून नजर आता है। राहिम ऐसा समझता था तो ऐसा ही रहेगा। मैं इलाफ को नहीं रोकूंगी। फैसला सुनाकर वो मजबूत बनी अपनी जगह से उठी। गफूर साहब ने उन्हें जाते हुए देखा। वो सोच निगाहें उनके जूतों पर आकर जम गई। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती जरीना। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम जानना नहीं चाहोगी। वो आंखें बंद किए सोच रहे थे। फिर उनकी नजर खामोश खड़ी अनीशा पर पड़ी, उनकी प्यारी बेटी अनीशा पर। इधर आओ। मोहब्बत पाश लहजे में वो हाथ के इशारे से उसे करीब आने का कह रहे थे। एक वही तो थी जो इन सब झमेलों से अलग थी, उनकी प्यारी बेटी, मासूम और भोली। वो कदम कदम चलती डैड के पास आई और सोफे के किनारे पर टिक गई। गफूर साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा था। अगर मैं कुछ कहूँ तो मानोगी? इस सवाल के पीछे छुपी बात को वो जान गई थी, तभी सर झुकाते हुए मध्यम लहजे में बोली। मम्मी बता चुकी हैं मुझे। ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है। वो उनके सामने इस तरह की बात करते हुए हिचकिचा रही थी। गो कि उनके घर का माहौल थोड़ा लिबरल किस्म का था, लेकिन इतना भी नहीं था कि यूं मुंह उठाकर डैडी या भाई से बात कर ली जाए। आज वो हिम्मत पकड़ रही थी। आज उसे उन्हें सुल्तान के बारे में बताना था। क्या वो बता पाएगी? पता नहीं। जब आपकी मम्मी और मेरी शादी हुई थी तब मेरे भी यही नजरियात थे। एक ऐसी लड़की से शादी करना जिससे देखा तक ना हो, जानते ना हो, दूसरे शहर की अलग रस्म और रिवाज की लड़की से शादी भला कैसे कामयाब हो सकती है? यही सब कुछ मैं सोचता था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैंने अपनी माँ की बात मानी थी तो ही मैं खुश रहा हूँ। राहिम का दुख भी शायद किसी गुनाह के एवज ही हमें मिला है बेटा, वरना आप जानती हो हम कितने खुश थे अपनी जिंदगियों में।
وہ خاموش سامنے بنی انہیں سن رہی تھی۔ بہت کچھ تھا کہنے کو، مگر بہت کچھ کو لفظوں میں ڈھالنے کی سکت نہیں ہو رہی تھی اس میں۔ صغیر ایک اچھا لڑکا ہے، ویل مینرڈ اور سیٹلڈ، وہ آپ کو خوش رکھے گا۔ وہ سلطان ایبک کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بتانا تھا انہیں، لیکن الفاظ دم توڑ رہے تھے اور وہ بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ ان کی ممی نے بذات خود آپ کا کہا ہے، ان کی نظروں میں آپ کا انتظار ہے بیٹا۔ اس نے ہمت کی، زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی بڑی ہمت کی۔ پر ڈیڈی، نظریں اٹھائیں، دل زور کا دھڑکا، گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی۔ غفور صاحب دکھی چہرے کے ساتھ دونوں بھووں کو آپس میں ملاتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ دکھی اس لیے تھا کیونکہ راہم کا قصہ جو چھڑ گیا تھا۔ اولاد کا دکھ بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ دکھ انہیں یوں ہی تڑپایا کرتا تھا۔ میں اس نے توقف سے کام لیا، نچلے ہونٹ کو تر کر کے چھوڑا اور ڈرتے ہوئے انہیں دیکھ کر بولی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ غفور صاحب کی بھویں ڈھیلی ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہوئیں، چونکاہٹ واضح تھی۔ ہم 4 ماہ پہلے ملے تھے اور گردن کی ہڈی پھر سے اوپر نیچے ہوئی، لاؤنج میں پھیلی خاموشی جان لیوا لگنے لگی اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس نے مجھے شادی کی آفر کی ہے۔ غفور صاحب لاجواب ہوئے تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ری ایکشن دیں۔ کچھ دیر قبل ہوئی دل دوز گفتگو جیسے وہاں سے چپکے سے چلی گئی تھی، بالکل ویسے جیسے راہم چپکے سے ان کی زندگیوں سے نکل گیا تھا۔ اب موجود تھی تو فقط جان لیوا خاموشی۔ ڈیڈی، آگے سے رکھ کر اسے ڈرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نظریں اٹھا کر کہنے لگی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اسے کبھی مجھے اصرار نہیں کیا، بس اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کے دل میں سافٹ کارنر ہے میرے لیے ڈیڈی، کچھ تو کہیں۔ غفور صاحب نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے۔ انیشا نے گھبراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا، ان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں اور چہرے پر گزرے دکھ کے آثار۔ نام کیا ہے اس کا؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد وہ مدھم آواز میں پوچھ رہے تھے۔ ماتھے پر تاہنوز سوچ کا جال تھا اور آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جا ٹکی تھیں۔ سلطان۔ اس کا وجود ٹھنڈا ہونے لگ گیا تھا، دل کی لرزاہٹ واضح تھی۔ شاید اس کی ممی ہوتی تو یہ کنڈیشن نہ ہوتی اس کی۔ ڈیڈی کے سامنے وہ کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن اس نے کر دی۔ اگر وہ آج انہیں یہ سب نہ بتاتی تو کبھی نہ بتا سکتی۔ فون ملا اسے۔ وہ کوٹ سے موبائل فون نکال کر اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ انیشا نے خاموشی سے موبائل تھام کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے اب؟ برہان اس کے قریب بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ اٹلی میں اس کا بہت ضروری کام تھا لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے اپنے ہر کام کو پینڈنگ پر رکھ لیا تھا۔ جب تک ایبک سیٹ نہیں ہو جاتا، جب تک ایبک کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، وہ کسی کام پر نہیں جائے گا۔ اس بات کا تہیہ اس نے کر لیا تھا۔ بہت اچھا۔ مسکرا کر گہری سانس بھر کر اس نے کہا تھا۔ آسمانی رنگ کی ٹائل سے سجا اس ہاسپٹل کا کمرہ خاصا آرام دہ تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے بڑی ساری LED پر برہان نے ARY نیوز چینل لگایا ہوا تھا، جس میں الیکشن کے نتائج کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا۔ آواز بہت دھیمی تھی کہ یہ ڈاکٹر کی ہدایت تھی، جبکہ دائیں جانب جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کے پردے بھی سائڈ پر سرکے ہوئے تھے۔ صنوبر کے درخت کی موٹی ٹہنیاں بآسانی نظر آ رہی تھیں۔ تازہ ہوا اور پھولوں کی مصنوعی خوشبو نے کمرے کے ماحول کو خاصا تازہ دم بنا دیا تھا۔ بیڈ کو سرہانے سے اوپر کیے وہ تکیوں سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھ میں لگی سوئی کو دیکھ رہا تھا، جس میں سے قطرہ قطرہ ڈرپ اس کی نسوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس بھرا۔ یہ تو اچھی خبر ہے، یعنی میں سوچ رہا ہوں ہمیں کچھ عرصے کے لیے شام چلے جانا چاہیے۔ تھوڑی ہوا بدلے کی تو دماغ بھی بدل جائے گا۔ ایبک اس کی بات پر ہنسا تھا۔ آدھی آستینوں کا مریضوں والا فیروزی لباس اس کی صاف رنگت پر خاصا جچ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے سپرنگ بال اس پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ کوئی ہی ہوتا تھا جس پر اس طرح کے ڈھیلے لچھوں والے بال اچھے لگتے ہوں، باقی تو جتنے بھی دیکھے نمونے ہی دیکھے۔ اچھا سوری، دماغ نہیں بدلے گا بھائی، جب تک سب واضح نہیں ہو جاتا دماغ نہیں بدلے گا۔ بات ختم کر کے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ پھر سے ڈرپ کو دیکھنے لگا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس کے جھونکے اندر بھی آ رہے تھے۔ سردیوں کی ہواؤں کی یہی تو خاص بات ہوتی ہے، دل اور روح کو معطر کر دیتی ہیں یہ، جس طرح ابھی ایبک ہو رہا تھا۔ سمر پتہ نہیں کیوں اتنا سلو کام کر رہا ہے، وہ جلدی کرے تو سب
جلدی کلیئر ہو سکتا ہے۔ ایبک نے برہان کی زچ زدہ سی آواز سنی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا سیل فون چنگھاڑ اٹھا۔ ایبک نے ایک مسکراتی نظر فون پر ڈالی اور اسی طرح کی آواز سے بولا، لو حاضر ہو گئے، بولو۔ جس طرح سے فون دھاڑ رہا ہے ضرور سمجھ یا اس کے باپ کی کال ہوگی۔ میں ٹھیک تھا۔ غفور صاحب ہمیں یاد کر اٹھے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر فون کو لگا کر ایزی ہو کر نیم دراز ہو چکا تھا، لیکن جلد ہی اسے کمر کو سیدھا کرنا پڑا۔ آواز انیشا کی آئی تھی۔ کیسے ہو سلطان؟ سلام کے بعد وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ برہان نے ہاتھوں کو پھیلا کر سر جھٹکا، یعنی ان کا کھیل الٹ ہو گیا تھا۔ انیشا سب کچھ اپنے باپ کو بتا چکی تھی۔ کمال، شکر اللہ کا۔ تم کیسی ہو؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ انیشا نے غفور صاحب کو دیکھا تھا جن کے ماتھے کے جال ابھی آن بان شان سے موجود تھے۔ اس نے مدھم آواز میں جواب دیا، ڈیڈی کا ہے وہ تم سے۔ اس نے ایک نظر پھر اپنے ڈیڈی پر ڈالی، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا فون بھی لاؤڈ سپیکر پر تھا۔ ایبک نے برہان پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ صنوبر کے درخت کے پتے ہوا کے جھونکے سے اڑ کر اندر آ گئے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی اور وہ زندگی کو الوداع کہتے ہوئے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ متوازن لہجہ، بے فکر آواز، نڈر انداز۔ خدا کا شکر ہے۔ ان کی آواز سپیکر میں ابھری۔ ایبک نے آنکھوں کو بند کیا تھا۔ ماضی کی یادیں اس کے دماغ میں کالی آندھی کی طرح پھیلنے لگی تھیں۔ ان کی آواز کسی سے بہت میچ کر رہی تھی، وہ کسی جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ برہان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنائیت کا احساس دلایا۔ وہ آنکھیں کھول کر مسکرا اٹھا۔ انیشا نے آج بتایا تمہارے بارے میں؟ فیملی کو لے کر کل گھر آ سکتے ہو؟ ایبک کی آنکھوں میں کانچ بھر گیا تھا، ٹوٹا ہوا کانچ جس نے اس کی آنکھوں، اس کے دل کا لہو کر دیا۔ یہ الفاظ، یہ دعوت، کچھ خواہشات اس طرح سے بدل کر پوری ہوتی ہیں سوچا نہ تھا۔ فیملی نہیں ہے میری سر، تنہا ہوں میں۔ غفور صاحب نے نظروں کا زاویہ انیشا کی طرف کیا۔ یہ بات اسے معلوم تھی اور جانتی تھی۔ کبھی بھی اس کے ڈیڈی اس بات کو ہضم نہیں کریں گے۔ کوئی رشتہ دار؟ سوال پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے، جواب مشکل۔ نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز ابھری۔ صنوبر کے دم توڑتے پتے اس آواز کی تلخی کو سہار نہیں پا رہے تھے۔ وہ کچھ اور سکڑ گئے۔ ممکن ہی نہیں، کوئی انسان اتنا تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی رشتہ دار، دوست، احباب کچھ تو ہو۔ ایبک نے ان کی بات درمیان میں قطع کی۔ غفور صاحب کو آواز سے وہ کا خاصا سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ خیر، آواز سے سلجھے ہوئے تو بڑے بڑے بدماش بھی لگتے ہیں، تو کیا سب پر یقین کر کے بیٹھ جائے وہ؟ ایک بھائی ہے میرا، کہیں تو فیملی کے طور پر اسے لے آتا ہوں۔ برہان نے بھویں اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا تو یہ سب ہو کیوں رہا تھا آخر؟ سگا بھائی ہے؟ انیشا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کوئی آ نہ جائے، کوئی ان کی بات سن نہ لے، کوئی درمیان میں نہ ٹوک دے۔ یہی خدشہ اسے لاحق تھا۔ سب سے بڑا خدشہ سلطان کے ریجیکشن کا تھا۔ اگر ڈیڈ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو کیا بنے گا اس کا؟ کیا وہ رہ پائے گی اس کے بنا؟ کیا وہ رہ سکتی تھی؟ جواب تھا نہیں، نہیں، بس نہیں۔ اب تو بس جو ہے وہی ہے، یوں کہہ لے سگوں سے بھی زیادہ ہے۔ غفور صاحب خاموش رہے تھے، پھر ان کی آواز نے ان کے کمرے میں جگہ بنائی تھی، کمرے کے ساتھ ساتھ سماعتوں میں بھی۔ کل ملتے ہیں، پھر شارپ 8 بجے، ڈنر ٹائم، کہہ کر انہوں نے کال منقطع کر دی۔ ایبک نے سیل فون کو بیڈ پر اچھالا اور برہان کو سننے لگا جو کہہ رہا تھا، میں ہرگز تمہارے ساتھ ٹائی لگا کر بوکے پکڑے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں بتا رہا ہوں ایبک، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایبک اس کی حالت سے حز اٹھا رہا تھا۔ ہنس دیا، مگر جلدی سنجیدہ بھی ہو گیا کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ کہاں وہ الاف کے سپنے سجائے بیٹھا تھا اور کہاں اب انیشا کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ کیا ایسا ہونا تھا ایبک سلطان کی کہانی کا انجام؟ صحیح تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے، سب اپنے اپنے مدار سے ہٹ چکے ہیں، کہانی بکھر رہی ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہوگا۔ بس اتنا پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں موجود عزم کے سبب برہان رخ موڑ چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا آگے کیا ہوگا، بس یہی معلوم تھا کہ کہانی چل رہی ہے، یا یوں کہیں بھاگ رہی ہے۔ تم کیا لگتی ہو ان کی؟ بیجنگ کی سرزمین پر بادل ویسے ہی اترے تھے جیسے پہلے اترا کرتے تھے۔ کنمن نے رم جھم کی چادر اوڑھ کر اسے زور سے جھٹکا تو گیلی چادر کے دل نشین چھینٹے زمین زادوں کو بھگو گئے۔
मूसलाधार बारिश में छतरियों तले ढेर सारे जवान और बूढ़े पुलिस स्टेशन के सामने इस्तादा थे। हाथ में बैनर पकड़े हुए थे जिन पर हैशटैग जस्टिस जस्टिस फॉर मिसेस यूसुफ लिखा हुआ था। मिसेस यूसुफ एक निहायत सलीका शुआर और जानी मानी स्कॉलर थीं जिनके हाथों लातादाद लोगों ने बैत ली हुई थी। कई लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे और अनगिनत घर उनके खर्चे पर ज़ेर कफालत थे। पिछले साल हाई स्कूल के कॉन्वोकेशन पर उन्हें बतौर चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था। न्यूज़ चैनल्स अक्सर व बेशतर उस खुदातर औरत का इंटरव्यू ले लेते थे। मिसेस जोसेफ उन सब चीज़ों से कतराती थी कि वो इस बात की कायल नहीं थी। आप नेकी करो तो उसका इश्तिहार दुनिया वालों के सामने लगा दो। नेकी छुप कर करने का काम है, बिल्कुल खामोशी के साथ। तो वो सोना है जिसे छुपा कर रखा जाता है। नज़रों में आ जाए तो उसे नज़र लग जाया करती है। और जिन चीज़ों को नज़र लगती है वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। भला कौन चाहेगा उनकी नेकी ज़वाल का शिकार हो? हुँ? नाज़ इस हजूम में सबसे आगे खड़ी थी। मिसेस जोसेफ के मना करने के बावजूद वो वहाँ पर थी और हाथ में मौजूद लाउड स्पीकर पर ज़ोर-ज़ोर से मिसेस जोसेफ की रिहाई की दरख्वास्त कर रही थी। बाहर मींह बरस रही थी और अंदर आरामदेह सोफे पर हाथ में तस्बीह पकड़े मिसेस जोसेफ मुस्कुराते चेहरे के साथ उस लड़के को देख रही थी जो पिछले आधे घंटे से उनसे एबिक के बारे में सवाल कर रहा था और हर बार की तरह मायूस सी नजर आ रहा था। आप मेरे साथ ताउन करेंगी तो ही मैं उस क्रिमिनल को पकड़ पाऊंगा। उसने कई जानों को अपनी तहवील में लिया हुआ है, आप यकीन नहीं कर सकती। मुल्क के उमरा के हाथों गुज़श्ता 2 हफ्तों से में हम कितना ज़लील हो रहे हैं, कौन सी धमकियाँ या प्रेशर नहीं है, जो हम लोगों को ना मिला हो। आप सुन रही हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? वो लोग तफ्तीशी रूम में विराजमान नहीं थे। वो लोग तो घर के एक कमरे की तरह दिखते एक कमरे में मौजूद थे, जहाँ सोफ़े थे, टीवी था, वाज़ थे और सर पर झूलता छोटा-सा फानूस भी। ओह हाँ, वहाँ 2 दीवारों पर कदीम ज़माने के लोगों की पेंटिंग्स भी मौजूद थीं। एक में पूरा चाँद था और उसकी और मुँह और हाथ धुआ के से अंदाज़ में उठाए लोग जिनके जिस्मों का रंग स्याह था। लेकिन जुड़े हुए हाथों पर चाँद की चाँदनी पड़कर उन्हें मुनव्वर कर रही थी। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग एक शिकार किए बैल के गिर्द इकट्ठे थे। वो पंजों के बल बैठे थे। हाथों में भाले और दीगर औजार थे, यानी वो पार्टी करने के मूड में थे। करने दो, हो सकता है एक दिन उनका भी आए और वो अपनी ये हसरत पूरी कर ले, हो सकता है। तुम जिस क्रिमिनल की बात कर रहे हो उसके बारे में मैं फ़कत इतना जानती हूँ कि वो मेरे शौहर का एक पेशेंट था। समर ने तहम्मुल और तमीज़ से उनकी बात दरमियान में कता की। मेज़ पर रखा रिकॉर्ड यानी गुफ्तगू सुन कर थक गया था। कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसकी समातों में कैद होकर उस लड़के की मुश्किल आसान कर देती जो अब थक सा गया था। ऐसा नहीं करें मिसेस जोसेफ, अपनी बात को झूठ के लिबादे में नहीं डालें, क्योंकि एक बार एबिक को आपके घर जाते देखा गया है। वो आपके घर जा रहा था, मतलब आप उसे जानती हैं। मिसेस जोसेफ की याकूत के दानों वाली तस्बीह हौले-हौले आगे आगे को सिरक रही थी। उन्होंने एक पॉइंट पर आकर उसे रोक दिया, नज़र उठाई और मुद्दा बयान किया। उन गवाहान को तलब कर सकते हो मेरे सामने, जो उस बात का दावा कर रहे हैं? और अगर ऐसा है भी तो क्या ये ज़रूरी है मेरा इस सब से कोई ताल्लुक है? आप सुलझे हुए लगते हो, इसलिए आपको एक बार आखिरी बार समझा देती हूँ। उस लड़के के बारे में मत पूछो मुझसे, कुछ हासिल नहीं होगा, फ़कत वक़्त की बर्बादी के। समर ने मुँह को दोनों हाथों से रगड़ा था। आखिरी बार वो उनसे आस भरे अंदाज में पूछ रहा था। कोई भी लचक नहीं है? नूरानी चेहरे वाली औरत का सर ना में हिला। वो दोनों घुटनों पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। आप अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लें। आपको बाइज़्ज़त तौर पर घर पहुँचा दिया जाएगा। वो खड़ा हो गया था, बाहर की ओर कदम बढ़ा रहा था, जब मिसेस जोसेफ की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। नमाज तो अदा कर लूँगी, लेकिन क्या इन तस्वीर में ऐसा मुमकिन है? वो मुड़ा था, यूनिफ़ॉर्म की पैंट की जेबों में हाथ और साए एक निगाह उन पर डाली और दूसरी तस्वीरों पर। माज़रत के साथ सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन अजीब नहीं कि आपको अपनी नमाज ज़ाया होने की फ़िक्र है। इन जानों की नहीं जिन्हें अल्लाह ने बहुत चाह से तख्लीक फरमाया। क्या खून के वज़ू से नमाज कबूल हो जाएगी आपकी? वो उस लड़के का चेहरा देखती रह गईं, जो आगे बढ़कर बारी-बारी इन तस्वीरों को उतार कर दीवार के सहारे उल्टा रख रहा था। ऐसा कर चुकने के बाद वो एक बार फिर उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ।
मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आपकी पर्सनैलिटी से लगता है खासी नरम दिल इंसान हैं आप। दरवाज़े को बंद करके वो बाहर आया था। कमरे के पुरसकून माहौल की निस्बत बाहर खासा शोर था। बारिश का शोर और लोगों के चिल्लाने का शोर। वो यूं ही पैंट की जेबों में हाथ दिए खरामा खरामा चलता पुलिस स्टेशन के मेन दरवाजे के फ्रेम में आन रुक खड़ा हुआ था। एक सिपाही ने झट से छतरी उसके सर पर तानी थी कि शेर से पानी आबशार की तरह टपक रहा था। वासी को उम्मीद थी कि अगर एक सेकंड भी लेट करता समर इस पानी में भीग जाता। खुदा तर्स खातून को रिहा किया जाए, फौरन किया जाए। नाज की आवाज़ स्पीकर में उभर रही थी। उसके पीछे मौजूद बाकी अवाम भी चीख उठी। चंद एक न्यूज़ चैनल्स वाले लाइव कवरेज दे रहे थे। पुलिस की मोबाइल साइट पर ही खड़ी थी। ऊपर से देखा जाए तो अनगिनत स्याह छतरियां आपको नजर आएंगी जिनसे पानी मुसलसल गिर रहा था। समर की पुतलियों ने उस लड़की की तरफ हरकत की और वहीं साकिन होकर रह गई। वो लब बस्ता सा उसे देख रहा था जो बिखरे हुए अंदाज में मिसेस जोसेफ के लिए नारे लगा रही थी। एक वही थी जो बिखरी हुई थी वरना तो ये पूरा मन एहतजाज था। इस लड़की को अंदर लेकर आओ। उसके साथ खड़े दूसरे सिपाही को ऑर्डर दिया और खुद कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। कुछ देर बाद लकड़ी की कुर्सियों में से एक पर नाज टिक रही थी। उसके बिल्कुल सामने मेज के उस पार एशियन ऑफिसर बैठा हुआ था। वो मेज पर रखी क्रिस्टल की गेंद को शहादत की उंगली से हिला रहा था। चौकोर लकड़ी लकड़ी के खाने पर टिकी वो क्रिस्टल की गेंद जो कई रंग रिफ्लेक्ट कर रही थी समर के हिलाने से डिस्को बॉल लग रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? वो इसी तरह गेंद को हिलाते हुए पूछ रहा था। गेंद नजरें भी गेंद पर ही टिकी थी। लाउड स्पीकर हाथ में थामे उस लड़की की आवाज उसकी समाज से टकराई। नाज आबशार। गेंद को उसने एक जगह रोका और नजरें उठाई। टर्किश? लड़की ने नफी में सर हिलाया था। इंडियन? महाराष्ट्र से ताल्लुक है मेरा। हम्म। वो सीधा हुआ, दोनों हाथों को बाहम फंसाकर थोड़ा मेज पर झुका और उस लड़की के चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछ डाला। मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के बासी हो तो फिर इतना वावेला क्यों? तुम क्या लगती हो उनकी ये जो ये उठाकर चिल्ला रही हो? वो लाउड स्पीकर की तरफ इशारा करके उसे दरियाफ्त कर रहा था। नाज ने लबों को तज़हीकी अंदाज में फैलाया। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है मिस्टर एशियन। इंसानियत के अलंबरदार भी बहुत हैं। समर ने भवों को उचकाया उचकाया था। हर कोई बेहिस नहीं होता। तो मिस इंसानियत की लंबरदार, मैं आपके सामने एक ऑफर रखता हूँ। मिसेस जोसेफ को छोड़ देता हूँ, उनकी जगह तुम गिरफ्तारी दे दो। क्यों, मुश्किल है? नाज ने सुर्ख रंग का स्पीकर उठाकर मेज पर रखा और उसी के अंदाज में दोनों हाथ बाहम फंसाए आगे को ही। अगर उनके खिलाफ एफआईआर कट चुकी है तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, ये आपका मुल्क नहीं है जहाँ अंधा कानून चलता हो। ये चाइना है, शीशे जैसा कानून है यहाँ का। समर उसकी बात पर यकलख्त ही हंस पड़ा। मजाक ही ऐसा था कि उसे हंसना पड़ा। दुरुस्त फरमाया मोहतरमा, शीशा ही है जिस पर से रूल्स एक एक करके फिसल कर गिरते हैं। वो हाथ के इशारे से स्लाइड करता हुआ कह रहा था। खैर, मुझे इन वतनों के कानूनों की ला यानी बहसों में नहीं उलझना। मैं तो यहाँ अपने केस के सिलसिले में हूँ। केस हल हो जाएगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। नाज ने इस बात में सर हिलाया था। उसके अंदर आते ही बाहर जैसे सन्नाटा सा छा गया था। खामोश एहतजाज, पुरसकून माहौल, फौरी नतीजा, ये थी यहाँ के लोगों की स्ट्रेटजी। बीजिंग की फिजा के लिए ये बहुत बेहतर होगा। वो बुड़बुड़ाई थी। पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसरों के मुतालिक और अपने मुल्क के ऑफिसरों की आंखों देखी बदतमीजियों की वजह से ही वो मोहताती से काम ले रही थी। क्या बई था वो उसे अंदर डाल दे। यूं भी पाकिस्तानी मर्दों के दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चलते हैं। इस जोसेफ को रिहा कर दे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। उसका चेहरा न रूठा था। पानी की वजह से बाल कुदरती गीले हो चुके थे, तभी जुड़े जुड़े से थे। वो हो चुकी हैं, आप अपनी आवाम को भेज दें। कोई भी रिएक्शन दिए बिना वो कुर्सी को पीछे करती खड़ी हुई एक मखसूस आवाज उभरी थी। समर ने उसे जाते हुए देखा। खामखा एक तबस्सुम उसके लबों पर आन ठहरा था। सर फिरी, सर झटकते हुए यह लकब खास तौर पर उसने नाज के लिए चुना था, जैसे ये बना ही सिर्फ उसके लिए हो। और शायद ऐसा था भी, था कि नहीं। और जब कुछ याद ना रहे, कुछ साथ ना रहे, तब तुम चले आना, मुझको याद कराना। वो बीते हुए लम्हे, वो चाहतों के अदवार, वो मेरी तुम्हारी बातें, वो मोहब्बतों की सातें जो बीत गई हैं चुपके से, जो खो गई हैं झटके से। तुम एक बार चले आना, तुम मुझको याद जरूर कराना। वो सिंक के सामने मौजूद थी। कितने ही छींटे थे जो वो चेहरे पर मार चुकी थी। ठंडा पानी भी उसके आसाब दुरुस्त करने से कासिर था। वो नहीं समझ रही थी कि क्या हो रहा है, क्या उससे हो चुका है।
वो एबिक को बीमार हालत में छोड़ आई थी। कोई दुश्मन भी होता तो वो ऐसा नहीं करती, तो फिर उसके साथ कैसे कर बैठी? उसका आधा सर मुसलसल पानी लगने की वजह से गीला हो गया था। ठोड़ी और गर्दन से पानी टपक टपक जा रहा था। हे इलाफ, तुम्हारी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई। को वर्कर की आवाज पर उसे सर उठाकर खुद को आईने में देखा। एबी को छोड़कर वो सीधा ऑफिस आ गई थी। ला रही हूँ, तुम जाओ। वॉशरूम के दरवाजे की तरफ मुंह करके उसे कहा था। उसका सर दर्द से भारी हो चुका था, बहुत ज्यादा भारी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो इलाफ? तुम एक बीमार इंसान को कैसे अकेले छोड़ सकती हो? इन सोचों में घिरी वो वॉशरूम से बाहर आई। हवा में चेहरे को सुखाने के बाद उसने मॉइस्चराइजर लगाया। लाइट ब्राउन रंग की लिपस्टिक को लबों पर जगह देते हुए वो फाइल को उठा रही थी। फोन करके मालूम करूं वो कैसा है, क्या ये फैसला सही है? गायब दिमागी से वो कमरे से बाहर आई थी। एडिटर को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के बाद वो वापस अपने कैबिन में आ गई। गफूर साहब ने उसे खतरनाक कामों में मुलविस होने से रोका था। वो खुद भी कोशिश कर रही थी कोई मैस ना फैले, लेकिन इससे ये सब होता जा रहा था और वो सब में फंसती जा रही थी। मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। गलत किया, गलती की तलाफी तो बनती है। वो मेज की जानिब आई और झुककर ग्लोब के पास रखा अपना फोन उठा लिया। मगर वो है कौन जिसके लिए मैं तलाफियां करती फिरूं? मुझे ये नहीं करना चाहिए। इस सब से उसकी जुर्रत और बढ़ जाएगी। फोन को मेज पर रखने से पहले उसके दिमाग में सोच का एक और कूंदा लपका था। उसने आंखें बंद करके खोली। लेकिन इस ज़मीर का क्या करूं जो अपनी गलती पर पशेमान है? गहरा सांस भरकर उसने सेल फोन उठाया। हर बार की तरह ज़मीर की रिहाई का फैसला लम्हा भर में हुआ था। उसने एबिक का नंबर डायल किया और लकड़ी की पॉलिश्ड मेज पर उंगली फेरने लगी। वो जैकेट को शानों पर से झटकते हुए पहन रहा था। झुककर उसने जॉगर्स में पाँव डाले और वॉलेट उठाकर जेब जेब में रख दिया। अभी वो बाजुओं की जिप बंद कर ही रहा था कि साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल फोन घूं घूं करने लगा। खड़े खड़े उसने सेल फोन की चमकती स्क्रीन को देखा जिस पर लिखा नाम उसे चौंका गया था। जैकेट के कॉलर को दुरुस्त करते हुए उसने कॉल रिसीव की और लाउड स्पीकर ऑन कर लिया कि ये वो कॉल थी जिसे वो कतई इग्नोर नहीं कर सकता था। जिंदा हूँ, इतना तो अंदाजा है। कॉल खैरियत पूछने के लिए की होगी, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, अभी जान नहीं छोड़ूंगा। घड़ी को कलाई में जगह देते हुए वो दबीज खामोशी को तोड़ते हुए कह रहा था। इलाफ की सांस की आवाज बखूबी उस तक पहुंच रही थी। तुम दुरुस्त हो, मैंने इसीलिए कॉल की थी। तुम्हें क्या हो गया था? बराह रास्त शायद ये उनकी सालों बाद एक नॉर्मल गुफ्तगू थी। एविक के लबों को मुस्कुराहट छुआ। होठों के किनारों के करीब छोटे छोटे गड़े पड़ गए। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ यादें हैं जो आकर हालत खराब कर जाती हैं, या कुछ ऐसे अल्फाज जो दिल को जख्मी कर देते हैं। तुम्हारे अल्फाजों ने भी जख्मी किया था मुझे। स्प्रिंग बालों में वो उंगलियां चलाते हुए कह रहा था। उसका माथा कुशादा था और शाने कदरे चौड़े। हमें बात करनी चाहिए। इलाफ की तरफ से आई पेशकश पर उसने आवाज के साथ सामने की जिप को सीने तक खींचा और बेड पर दोनों हाथ बांधे बैठ गया। हमारी बातों के नताइज अच्छे नहीं होते, ये चीज हम फेस कर चुके हैं, मगर फिर भी अगर तुम जोर देती हो तो मिल लेते हैं। अपनी आवाज पहचानने के बाद पहुंचाने के बाद वो उसका मुंतजिर था, जैसे सालों से था और शायद सालों तक रहे। परसों मिलते हैं फिर, मैं इस मामले को फौरी तौर पर सुलझाना चाहती हूँ। बुरहान दरवाजा खोलकर अंदर आया। एबिक ने एक निगाह उस पर डाली थी, फिर वो शाने उचका गया। परसों नहीं, कल। हम कल मिल रहे हैं लाहौर में, क्योंकि इसके बाद मेरे बहुत से प्लान्स हैं और आज से लेकर अगले एक हफ्ते तक मैं लाहौर ही हूँगा। अगर ये मुमकिन है तो तुम लाहौर आ जाओ, लोकेशन तुम्हें भेज दूंगा। बुरहान लब खोलने वाला था जब एबिक ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा। वो दोनों गफूर साहब के मेंशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहां इलाफ होगी या नहीं, ये एबिक ने नहीं सोचा था। हाँ, उसे मंजर से गायब करने के लिए उसके पास अच्छा प्लान था। चूंकि वो प्लान ज़ाया गया, इसलिए प्लान बी जब खुद चलकर खुद आया था तो वो इस पर अमल क्यों क्यों करना करता। यानी कि लाहौर। कुछ देर बाद उसकी पुरसोच आवाज़ गूंजी। बुरहान ने स्याह पैंट शर्ट पहनी हुई थी। हाथ में उसके बिल्स का बुके था। ब्लू बेल्स इलाफ को बहुत पसंद है, ये बात फ़कत एबिक जानता था, बुरहान नहीं। उसे तो यही लग रहा था कि अनीशा की इन फूलों से अटैचमेंट है। अगर उसे हकीकत की भनक भी लग जाती तो वल्लाह वो उन्हें नहीं खरीदता। ठीक है, फिर मिलते हैं। यूँ भी मुझे भी काम था लाहौर में, तो मुझे लोकेशन सेंड कर देना। सुपर। पहुँच कर अपनी तस्वीर ज़रूर भेजना। इलाफ उसकी बात पर बित गई। तस्वीर? वो क्यों भेजूँ? क्या तुम नहीं जानते ये गुनाह है?
मोहतरम फ़कत सूद लेने या देने वाले जहन्नुम की आग में नहीं जलेंगे। नामहरम की तस्वीर लेने और देने वाले भी इसकी आग में जलेंगे, और इतने इबरतनाक जलेंगे कि पनाह है बस। एबिक ने भवें उचकाई। जाने क्यों उसकी विपरी आवाज़ में से कोई याद आया था। जिंदगी की आग मुझे लगता है जहन्नुम की आग से ज़्यादा जलनदार है। खैर, मैं तो तस्दीक के लिए कह रहा था। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है नामहरमों की तस्वीरों से अपने फ़ोन को भरने का। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद हो चुका था। बुरहान फ़ोन बंद होने के 1 सेकंड बाद ही उस पर बरस पड़ा। ये तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ अनीशा के साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ इलाफ के साथ मीटिंग्स कर रहे हो। क्या चाह रहे हो आखिर? वो खड़ा हुआ था, खुद पर स्प्रे किया और आईने में उस सड़ू का अक्स देखने लगा जो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सीख पा लग रहा था। एबिक उसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। तुम परेशान थे ना कि अगर हमें वहाँ इलाफ ने देख लिया तो क्या होगा? किस तरह मैनेज करेंगे? देख लो, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। वो इस वक्त प्लेन में होगी जब हम उसके घर डिनर कर रहे होंगे। रास्ते इसी तरह बनते हैं मेरे भाई। वो मुड़ गया था। चेहरे पर छाई ज़बरदस्ती की शगुफ्तगी उस हुज़्न को छुपाने की नाकाम सही में थी जो हमवक़्त उसके साथ रहता था, बिल्कुल उसके हमज़ाद की तरह। मुझे समझ नहीं आती है बिक। वो भी खड़ा हुआ, हाथों में बुके और एक शॉपिंग बैग थामे उसके साथ घर से बाहर आया। इलाफ से तुम मोहब्बत करते हो यकीनन, और अनीशा के साथ शादी कर रहे हो। ये उलझन किस तरह की है? बुरहान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। सीट बेल्ट बांधकर एबिक उस इंसान को देख रहा था जिसका वो उम्र भर का मकरूज था, जिसका सरमाया उसके इलाज में बिल्कुल खत्म हो गया था। वो इंसान जो खुदा तरस और नेक फितरत का मालिक था, जो उसका कुछ नहीं था मगर सब कुछ था। उलझन तो कोई भी नहीं है, और रही इलाफ से मोहब्बत की बात तो शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि उसे चाह सकूं। उसके दिल में दर्द उठा था, गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे हुई, आबाद सड़कें, खुली फिजाएं, बेफिक्रे लोग। वो कहाँ था इन सब में? वो जिसने ज़िंदगी को कभी जिया ही नहीं था, और जब जीने लगा था तो उसे दर्द के आला दर्जे पर बिठाकर बावर करवाया गया कि ज़िंदगी फ़कत इसके लिए नहीं है, बाकी सबकी है मगर इसकी नहीं है। अनीशा से शादी करोगे? वो दुखी चेहरे के साथ मुस्कुराया। अंडरपास में दाएं बाएं लगी बेतहाशा लाइट्स का अक्स उसके चेहरे पर पड़ रहा था। इन जर्द रोशनियों ने दिल मुसव्विस कर उसके चेहरे पर जगह बनाई थी। जो हुस्न उसके शख्स के चेहरे से टपक रहा था वो बहुत दिलदोज था। नहीं। जवाब पर बड़ी जोरदार अंदाज में बुरहान ने ब्रेक पर पाँव रखा था। हैरत ही हैरत थी। एक साइड पर कार को रोककर वो पूरा उसकी तरफ मुड़ा। अगर नहीं करनी तो हम उनके घर क्यों जा रहे हैं एबिक? खुलकर बताओ, असल बात क्या है? जब तक मुझे एतमाद में नहीं लोगे तो हम साथ नहीं चलेंगे। तुम्हें मुझे सब बताना होगा। एबिक ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो गफूर मैंशन के अंदर अपनी कार पार्क कर रहे थे। गाड़ी से निकलने के बाद अब बुरहान के चेहरे पर इत्मीनान था। उन्हें रिसीव करने वहां कोई मौजूद नहीं था, फ़कत एक मेड के जो उन्हें अपने साथ अंदर ले जा रही थी। उसकी शक्ल, सूरत, कद काठ और ड्रेसिंग से लगता था कि वो यहाँ की नहीं है, लेकिन वो गलत निकले। वो एक पठान थी जो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर चली गई थी। घर खूबसूरत है, बुरहान ने चारों ओर निगाह दौड़ाकर कहा। एबी की नज़रें सफ़ेद रंग के मिस्री पर्दों पर थीं जिनकी कीमत दूर से ही बोल रही थी। पाँव के नीचे जो रग था वो यकीनन तुर्की से इंपोर्ट करके मंगवाया हुआ था, और दीवारों पर आवेजा पेंटिंग्स पेरिस की गैलरी की लग रही थी, क्योंकि तस्वीर में जो रंग इस्तेमाल हुए थे वो वहीं के थे, हल्के, पायदार मगर पुरअसर। हराम बोलता है मेरे भाई। उसका तबसरा बेलाग था। बुरहान को तो इस वक्त ऐसा ही लगा, तभी वो सर झटक गया। अस्तगफिरुल्लाह, देखो तो ये छोटा सा गुलदान कितना नफीस है, लेकिन तुम्हें मैं बताऊं ये इतना ही महंगा भी है। इटली में देखा था इसे, कीमत सुनकर तो होश ही उड़ गए थे मेरे। उनके सामने बिछी तकोन मेज और उस पर रखा गुलदान जिसमें रोज मैरी अभी ताज़ा थे को देखकर झट से बुरहान को इटली की वो एंटीक शॉप याद आ गई जहां खास तौर पर डेलीगेशन उसे लेकर गई थी। पाकिस्तानियों को लगता है खपत होता है नुमाइश का, इतना तो यूरोपी पागल नहीं होते जितना मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं हैरान हूँ। वो एक एक चीज को नजरों में रखते हुए कह रहा था। अगर वो पूरा लाउंज लूट लें तो यकीनन पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकते हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें, वल्लाह। और इस वॉल क्लॉक को तो देखो, एविक ने उसे टोक दिया। बस कर दो, बहुत हो गया। और दो साए नजदीक आ रहे हैं। एविक ने फुट मैट पर दो सर देखे थे जिनके अब शाने नजर आ रहे थे। बुरहान उसके कहने पर चौकस बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खुला था। खुलने के साथ ही गफूर साहब और अनीशा उसके फ्रेम में एक साथ उभरे थे।
दरवाज़ा इतना बड़ा था कि दोनों के अलावा तीसरा भी बआसानी उसमें खड़ा हो सकता था। शाही तर्ज के जालीदार दरवाजे पर जो कशीदाकारी हुई थी, वो शायद अरबी घरों के बाद यहाँ होगी और कहीं नहीं होगी। देख कर देख लें और लिख कर रख लें। सुनहरा जालीदार दरवाज़ा और चमकती हुई सुनहरी कशीदाकारी से मालूम होता था, शाही दरबार का दरवाज़ा खुला है और बादशाह के साथ शहज़ादी वहाँ मौजूद हुई है। ऐबिक अपनी शर्ट सामने से झटकता खड़ा हुआ। बुरहान ने भी उसकी तकलीद की थी। वालेकुम अस्सलाम। वो आगे बढ़ा था, उनके सामने आकर रुका और अपना सर आगे कर दिया। गफूर साहब के लिए ये सिचुएशन थोड़ी नाकाबिले यकीन हुई। उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर रखा था। शायद बेटियों के बाद ये पहला इंसान था जिसके सर पर वो हाथ रख रहे थे। वो उनका हाथ लेकर चूमने लगा, उसके बाद उन्हें माथे से लगाकर हटा था। तुम्हारी सूरत बता रही है तुम बगदाद से हो। वो मुस्कुराकर पीछे हटा। बुरहान ने फकत मुसाफिया से काम चलाया था, उससे ये नौटंकियां नहीं होती थीं। रस्म और रिवाज से भी अंदाजा लगाया होगा आपने, हमारे यहाँ बड़ों की दुआएं जिंदगी सहल कर देती हैं। ये अलग बात है कि मेरे नसीब में उनकी दुआएं नहीं। वो सब आमने सामने सोफों पर बैठ गए थे। अनीशा जाहिर सी बात है गफूर साहब के साथ बैठी हुई थी। उसके हाथ में ब्लू बेल्स का बुके था जिसे शुक्रिया अदा करते हुए उसने अबिक के हाथ से थाम लिया था। बुरहान ने शॉपिंग बैग गफूर साहब को थमाया। उसे अब समझ आ रही थी कि एबिक ने इतना महंगा एशट्रे क्यों खरीदा था। यहाँ की इमारत देखकर उसे एबिक के गिफ्ट की कीमत फिर भी कुछ कम लगी। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते थे? मतलब क्या वो भी बगदादी थे? उसने नफी में सर हिलाया, थोड़ा सा आगे झुककर बैठा और उस जूस को नजरअंदाज करने लगा जो अभी अभी मेड रख कर गई थी। उसे पीने में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने गिलास नहीं थामा था। मेरे वालिद साहब सुल्तान हुसैन एक पाकिस्तानी मर्द थे। अनिशा और गफूर सुल्तान नाम पर चौंके। ये तो उसका नाम था, क्या नहीं था? वो यहाँ से पहले तुर्की गए थे, वहाँ उनके कुछ बगदादी दोस्त बने जिनके साथ वो उनका मुल्क घूमने चले गए थे। उसके बाद वहाँ में वो मेरी माँ से मिले, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली। उसे थोड़ा वक्फा लिया था, नजर अनीशा पर डाली जो घूंट घूंट जूस को हलक से नीचे उतारती मुतज्जब दिखती थी। मगर सुल्तान नाम तो तुम्हारा है। गफूर साहब ने अपने ताज्जुब को जुबान दी। एबिक ने सहूलत से उसे इग्नोर किया और मजीद कहना शुरू हुआ। वो एक कामयाब ताजिर थे। मेरे होने के चंद अरसे बाद जुए की वजह से वो नाकारा हो गए थे। एक रात अचानक उनकी लाश आई और कहा गया कि उन्होंने किसी का बहुत बड़ा कर्जा देना था, जिसे अदा ना करने पर दोनों पार्टियों की लड़ाई हुई और मेरे बाबा मारे गए। वो अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकत आज उस इंसान को बता रहा था जिससे वो कभी नहीं मिला था। आज वो उस इंसान के सामने बैठा था जिसके सामने उनकी बेटी उसे कभी बिठाना नहीं चाहती होगी। वक्त ने करवट ली थी। आज एबिक भी वही था और गफूर साहब भी। बस वो इंसान नहीं था जिसकी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ तक आए। लाउंज की गर्म दीवारें सांसों जूस को निगलने और पलक झपकने के अलावा भी किसी और की आवाज़ सुन रही थी। वो कोई और ऐबिक था जो मज़ीद कह रहा था, मगर तुम्हारा नाम सुल्तान कैसे है? अगर ये तुम्हारे वालिद का है तो? गफूर साहब ज़ोर से बोले थे। मेरी एक बहन भी थी अदा, हम दोनों साथ बड़े हुए थे, बहुत स्ट्रगल की थी हम दोनों ने। हमारी माँ हालात की तंगी और महबूब शौहर के छोड़ जाने की वजह से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। मेरी बहन और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि वो जल्द ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उनका कत्ल कर दिया गया। गफूर साहब को अच्छू लगा था। अनीशा के हाथ से वो बुके फिसलकर कदमों में जा गिरा। बुरहान ने अभी का हाथ थामकर उसे रोकना चाहा था, मगर वो रुका और ना ही उसे रुकना था। उनका कत्ल पाकिस्तान में हुआ था, यहीं। हम बहुत गरीब थे। मेरी बहन और मैं, हम दोनों काम करते थे ताकि ज़िंदगी को घसीट सकें। यहाँ हम आए भी इसीलिए थे, वहाँ यानी न्यूयॉर्क में हमारी कोई जगह नहीं थी, कोई घर नहीं था। लेकिन यहाँ हमारे वालिद का घर था, जिसका एड्रेस वालिदा ने हमें हिफ्ज़ करवाया हुआ था। मगर अफ़सोस वो घर कब्रिस्तान बन गया। जानते हैं वो घर कब्रिस्तान क्यों बना था? बुरहान ने उसे दरमियान में टोक दिया। गफूर साहब के माथे पर शिकनों का पहाड़ उमड़ आया था। अनीशा के दिमाग में फ्लैशबैक्स हो रहे थे। उन झमाकों को नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। बीते 10 सालों को दोहराना आसान नहीं था। एबिक, बस कर दो, हम यहाँ से चल रहे हैं। एबिक? अनीशा इस नाम पर सुन हुई थी। एबिक, एबिक सुल्तान। उसका दिल कानों में धड़क उठा। ये नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके वजूद के मसामों से पसीना फूटने लगा, सर्दी में पसीना। क्योंकि आपके बेटे की मेरी बहन पर नजर थी।
समर द मोस्ट ओबीडिएंट बेटे की। गफूर साहब के हाथ से ग्लास छूट गया था। उनके नए नकोर से आज चमचमाते शूज ऑरेंज जूस से मैले हो गए। अनीशा के कानों से धुआं निकलने लगा। वो मुतहय्यस सी एबी को देख रही थी। ये वो क्या कह रहा था? वो होश में तो था। वो 10 सालों को क्यों वापस ला रहा था? हाँ, वो एबिक सुल्तान ही था। मेरी बहन और मेरी माँ का कातिल, आपका लाडला रेपिस्ट बेटा एसपी समर गफूर। वो एकदम बिफर कर खड़े हुए। उनके खड़े होने और चीखने की वजह से अनीशा बुरी तरह डरी थी। डर के सबब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वजूद ठंडा पड़ रहा था और दिमाग माउफ। जिस्म की लर्जिश वाजे थी। क्या बकवास है ये, निकलो यहाँ से। उनके चीखने की आवाज़ पूरे मैंशन में गूंज उठी। अपने कमरे में मौजूद हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाती जरीना फिक्रमंदी से खड़ी हुई। उन्हें गफूर साहब ने बताया था कि उनके कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अगर वो मेहमान खास थे तो ये चीखने की आवाज़ें क्यों? वो उसी फिक्र के साथ दरवाज़ा खोलकर लाउंज की तरफ लपकी थी। मेरी बहन और मेरी माँ का कातिल, आपके बेटे राहिम का कातिल, आपका प्यारा समर। जरीना ने दोनों हाथ मुंह पर रखे। वो लाउंज के दरवाजे में इस्तादा थी। अनीशा का उसके इंकशाफों से दम घुटने लगा था। वो दोनों हाथ कानों पर सख्ती से जमाए रो रही थी। गफूर साहब पूरे कांप उठे। दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन से दफा हो जाओ, आई सेड आउट। उंगली उठाकर गुस्से की ज्यादती की वजह से वो फटी आवाज में कह रहे थे। एबिक ने तहम्मुल से पीछे से अपनी शर्ट ऊपर करके जींस में उड़ती पिस्टल निकाली और उसे लोड करते हुए निशा के पास आया। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन इसे साथ लेकर जाऊंगा। साली साहिबा चलेंगी ना मेरे साथ? क्यों? हैरान क्यों हो रही हो? भूल गई हो? तुम्हारी बहन ने निकाह किया था मुझसे और तुम वहां हमारे साथ मौजूद थी। क्या नहीं याद? बुरहान ने आंखें बंद करके खोली। हालात थोड़े मुश्किल हो गए थे, तभी वो मोहताज सा वहां खड़ा था। जरीना दरवाजे का सहारा ले रही थी, जबकि गफूर साहब का चेहरा ऐसे सुत गया था जैसे मानो उनके वजूद से रूह खींच दी गई हो। जिस इंसान को हकीकत जानने के बाद आप 6 माह तक तलाश करते रहे थे ना, वो मैं था। इलाफ का शौहर और आपका दामाद, जिसे आपके ताबेदार बेटे ने मरा हुआ समझकर कूड़ेदान में डाल दिया था। कितना सपाक है ना आपका फरमाबरदार बेटा। उससे चंद कदम बढ़ाए। बुरहान मैसेज करके उन कराए के गुंडों को बुला बैठा था, जो बीजिंग से उसके साथ थे। भला दुगनी से बढ़कर सैलरी किसे नहीं चाहिए होती? एबिक, अनीशा के लबों ने सरगोशी की। कह दो ये झूठ है। जरीना की आवाज वो कब से उभरी थी। उनका बेटा उनका समर नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। उसे फंसाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुतान है, एक सफेद बहुतान। तस्लीम कर लें उसे, क्योंकि मजीद झटके आपको हिला देंगे। आधा सच बताया है मैंने, आधा खुद सामने आ जाएगा जब ये मेरे साथ जाएगी और मैं इसे लेकर जाऊंगा। पूरे कमरे में सफाक चेहरों वाले गुंडे आन खड़े हुए थे। दो ने गफूर साहब के सर पर बंदूकें तानी हुई थी, तो एक ने निढाल जरीना के सर पर। बाहर उनके गार्ड्स के साथ भी यही हुआ था यकीनन। आपकी हालत काबिले रहम है, मजीद होगी तब तक के लिए गुड लक। गफूर साहब पर एक इस्तेज़ाइया नजर डालकर वो बुत बनी अनीशा को अपने साथ वहां से ले गया था। उनके जाने के बाद काफी देर तक जरीना और गफूर साहब यूं ही खड़े रहे थे। एक कयामत थी जो इस पेंशन पर आ गिरी थी, मगर वो उसके असरात को ज़ायल करने से कासिर थे, क्योंकि वो खुद ही उसके असरात थे। खुद को भला कौन खत्म करता है? शराहील ने आखिरी फाइल पर सरसरी नजर दौड़ाई। सब ठीक था, तभी उसने फाइल को बंद करके परे खिसका दिया। कुर्सी की बैग पर वजन डालने के बाद वो आंखें बंद कर रहा था। बाहर खासी खून की फैली हुई थी, लेकिन उसके ऑफिस का माहौल पुरसकून था। सेंट्रल हीटिंग के बायस वहां गर्मी का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका दिल बोझल हो रहा था। क्यों? ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। नासिर, मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। इंटरकॉम बंद करने के बाद वो अपने माथे को मसल रहा था। गुज़श्ता कुछ दिन खासे दिक्कत आमेज रहे थे उसके लिए। जिस केस में वो हाथ फंसा बैठा था वो बहुत मुश्किल लग रहा था। एक रेस का केस था जिसके बेटे ने कत्ल कर दिया था, और जिसका किया था वो भी कोई आम इंसान नहीं था, एक जाना माना मशहूर बिजनेसमैन था। वो चाहे जितना बड़ा भी बिजनेसमैन होता, शराहिल के आगे नहीं टिक सकता था। उसे जैसे तैसे करके ले देकर उस मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन हाँ, इस सब में उसके आसाब काफी चटक गए थे। मॉम की कॉल आई थी, वो उसे कुछ अरसे के लिए टोरंटो बुला रही थी। वो जाना चाहता था, तभी उसने अपनी फ्लाइट कंफर्म करवा ली थी। सर, आपसे मिलने कोई खातून आई है। वो कॉफी के जरिए अपने कसे आसाब को ढीला कर रहा था।
जब उसका मुंशी अंदर आकर उसे इत्तला दे गया। गहरा सांस भरते हुए उसने कुर्सी के पैक को छोड़ा और सर हिलाते हुए बोला, उन्हें अंदर भेज दें। कुछ देर बाद एक उधेड़ उम्र औरत उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। सराहिल ने उसे नहीं पहचाना था, शायद वो कोई क्लाइंट हो। वो उन्हें अपनी थकी हुई आंखों के साथ देख रहा था। उसने बैठने का इशारा किया, जिस पर वो औरत कुछ झिझकते हुए बैठ गई थी। वो मुकम्मल तौर पर उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। जी कहिए। वकील साहब, मुझे अपने शौहर से खुला चाहिए। शराहील ने भवें उचकाई थी। दिखने में वो औरत मिडिल क्लास लग रही थी। उसके बोलने का अंदाज, उसके कपड़े जाहिर कर रहे थे कि वो एक आम सी घरेलू औरत है जो कि लगभग 38 वर्षों की है। आंखों और होंठों के किनारों पर झुर्रियां, कहीं कहीं बालों में झलकती चांदी और फरबही माइल वजूद उसके हालात का पता दे रहा था। खुला की वजह से समझ नहीं आ रही थी। अमूमन तो इस तरह के केसेस में वो मीटिंग के लिए वक्त दिया करता था, लेकिन सामने बैठी औरत के चेहरे का दुख और आंखों की वीरानगी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो भूल गया था कि कुछ घंटों बाद उसकी फ्लाइट और उससे पहले उसे गफूर मेंशन जाना है। जाहिर है यहाँ आप किसी वजह से आई हैं, लेकिन वो वजह खुला होगी समझा नहीं। यानी आप मुझे कोई ठोस वजह बताएं जिसकी बिना पर आप ये फैसला कर चुकी हैं। आपके बच्चे तो होंगे यकीनन। कॉफी मग में थोड़ी सी कॉफी बच गई थी। उसने स्याह सादा कोस्टर के ऊपर उसे रखा और दोनों हाथ बाहम फंसाकर उस औरत को सुनने लगा जो कह रही थी, मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं हूँ। उन्हें 40 की उम्र में भी अपने साथ एक लड़की चाहिए। मैं वैसी नहीं रही, इसलिए अब रोज लड़ाइयाँ होती हैं। वो मुझे मारते नहीं हैं, लेकिन इससे ज्यादा जख्म देते हैं। लफ्ज इतने सख्त होते हैं कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। वो रोने लगी थी। ये एक फैमिली केस था और वो ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में दिलचस्पी रखता था। इस तरह के केसेस कम ही डील करता था, लेकिन कहा ना, इस औरत से ना जाने क्यों उसे हमदर्दी महसूस होने लगी थी, जिसकी बिना पर वो उसे सुन रहा था और अब पानी का गिलास पेश कर रहा था। वो गिलास उसके हाथ से थाम कर घूंट घूंट पानी हलक से नीचे उतारने लगी, मानो उसे बड़ी दिक्कत हो पीने में, और उसे थी भी। उनका कई औरतों के साथ ताल्लुक है। लातादाद बार वो पता नहीं किस किस को घर ला चुकी हैं, कल रात भी। उसे जुमला दरमियान में छोड़ दिया। हलक में अटकता दर्द का गोला उसे बोलने से रोक गया था। शराहील को उसके लिए बुरा लगा। आपके बच्चे हैं? उसने फिर सवाल किया था। औरत ने नम आंखें उठाकर उसे देखा और नफे में सर हिलाया। नहीं, और अच्छा ही हुआ कि अल्लाह ने इसमें उससे महरूम रखा। ऐसे लोगों को औलाद रास नहीं आती। उसके लहजे में दुख हिलकोरे ले रहा था। शराहील ने टिश्यू पेपर बॉक्स उसके आगे किया। आपको भी उसी दुख ने दिखाया है, वरना जिस मुल्क में मैं रहता था वहां आपकी उम्र की कवारी लड़कियां होती हैं, चुस्त और चंचल। मेरी माँ ने ये गुनाह ना करे। तलाक एक नापसंदीदा फेल है, और तलाक याफ्ता औरतों की यहाँ क्या हैसियत है, ये बात आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। प्लीज आप कोशिश तो करें निभाने की। वो हतल मकदूर उसे समझाने की सही में था, वरना वो बहुत कम ही किसी को समझता था। उसकी बला से कोई तलाक ले या भागकर शादी करे, हर किसी की अपनी मर्जी, हर किसी की अपनी जिंदगी। तो क्या मैंने नहीं की होगी? गुज़श्ता 20 सालों से निभा की कोशिश कर रही हूँ। अब थक चुकी हूँ। उस औरत के नकूश अच्छे थे, बस हालात और औलाद के दुख ने उसे जल्द बूढ़ा कर दिया था। अगर वो थोड़ी सी पॉलिश हो जाए तो यकीनन उसका शौहर बदफितरती नहीं करेगा। क्या आपके शौहर शुरू से ऐसे थे? औरत ने फिर से नफी में सर हिलाया। वो तल्ख थे, लेकिन ये काम गुज़श्ता 4 सालों से कर रहे हैं। शराहील के लबों ने पहली बार मुस्कान को छुआ। बस उसे तय कर लिया था, वो इन दोनों की तलाक नहीं होने देगा। ठीक है, फिर मैं अपनी सेक्रेटरी को कह देता हूँ, वो आपको ग्रूम कर देंगी। आपको 3 माह तक हमारे साथ ताउन करना होगा। उसके बाद भी आप तलाक लेना चाहेंगी या आपका शौहर अपनी हरकतों पर कायम रहा तो मैं आपका केस दर्ज कर लूंगा। वो कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हुआ और उसकी बैग पर रखा कोट उठाकर पहनने लगा। मेरी फीस क्या होगी वकील साहब? उसके फौरन मानने से शराहिल को अंदाजा हुआ। वो खुद भी दिल से खुला नहीं चाहती थी। शराहिल ने कॉलर झटकते हुए उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। दुआ। यक लफ्ज़ी जवाब देकर वो उसे क्रॉस करता निकला था। औरत ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें मजीद पानियों से भर गईं। अपने मखसूस लिबास में हाथ में ब्रीफ केस थामे वो जल्दी जल्दी कचहरी की सीढ़ियां उतरता हुआ दाएं जानिब मुड़ा। पार्किंग लॉट में आकर उसने दूर से ही गाड़ी को अनलॉक किया था। अभी वो सीट बेल्ट बांध ही रहा था कि इलाफ की कॉल उसके सेल फोन पर आने लगी। वो मुस्कुरा दिया। कहो, कैसे याद किया मुझे आज? कार को रिवर्स करने के बाद वो उसे मेन रोड पर ले आया था। धूप आज तेज थी मगर भली थी। लाहौर जा रही हूँ मैं, 2 दिन बाद आऊंगी। सोचा तुम्हें भी बता दूं, कभी परेशान होते फिरो। शराहील के बेदे में खुशी की तितलियां यहाँ वहां मंडला उठी। ये एहसास जो था अनोखा था। यानी तुम्हें यकीन हो गया मैं तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ? वो मुस्कुरा रहा था।
اس کی مسکراہٹ آواز میں بھی کھلتی تھی۔ الاف سمجھ گئی، تبھی سر جھٹک کر بولی، مجھے تو تب سے یقین ہے جب سے تم نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ خوش ہے، چلو اور کر دیتے ہیں، یوں بھی اس کا فیوچر ہسبینڈ تو وہی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اگر وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی بات کر دے تو۔ بس کر دو مادام، ہارٹ اٹیک دلوانا ہے کیا؟ یو ٹرن آیا تھا، وہ گاڑی کو موڑ کر ون وے پر لے آیا۔ اس کا رخ چاچو کے گھر کی جانب ہی تھا۔ ویسے آج یہ عنایتیں کس لیے ہو رہی ہیں مجھ پر؟ کہیں اس عورت کے دل سے نکلی دعاؤں کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسا ہوا تو واللہ میں نے چیریٹی چیمبر کھول لینا ہے۔ کیوں؟ کیا پہلے کبھی میں نے ایسی بات نہیں کی؟ اس نے انڈیکیٹر لگا کر اشارہ دیا۔ وہ مڑنے والا تھا کہ یہاں سے بس 2 اسٹریٹ بعد ہی وہ گھر آیا، گھر تھا جہاں اسے جانا سب سے زیادہ پسند تھا۔ یاد دلا تو یاد دلا دو تو یاد آ جائے گا مجھے بھی۔ ویسے کیا سمر کا فیصلہ ابھی بھی وہی ہے؟ کوئی نہیں، ڈیڈی نے انہیں منع کر دیا ہے۔ وہ سر جھٹک رہا تھا، اسے اچانک رک جانا پڑا۔ وجہ وہ بات تھی جو اچانک ہی اسے یاد آ گئی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو شانے تھکن سے ڈھیلے کر دیے۔ اس کی آج بہت اہم کیس کی میٹنگ تھی۔ 4 بجے کا اس نے وقت دیا تھا اور ابھی 3:15 ہو چکے تھے۔ اتنی دور آ کر اسے واپس مڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ میٹنگ بھی ضروری تھی اور وقت پر پہنچنا تو اس سے بھی لازم۔ بہت بری ہو تم، مجال ہے جو کبھی میرے دل کی بات جان جاؤ۔ انکار کیا تھا اس لیے تاکہ تمہارے منہ سے اقرار سنو، مگر غلطی میری ہے، میں بھول گیا تھا کہ محترمہ تو خود دل سے چاہتی ہے میں انکار کر دوں۔ وہ سر جھٹک کر کہہ رہا تھا، نگاہیں سڑک پر تھی جبکہ دل الاف پر۔ تمہارے شکوے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا سنو، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ شاید اجلت میں تھی، اسی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میرے لیے؟ اس نے وقفہ لیا۔ وسعت لے آؤ اپنے دل میں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کی بات پر ہنس دی تھی۔ ٹورنٹو جا رہا ہوں، آج قریباً 10 کی فلائٹ ہے میری، اس نے اطلاع دی تھی۔ الاف کی اجرت اسے پسند نہیں آئی، بھلا وہ کیوں اتنی جلدی کال بند قطع کرے؟ الاف کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا کیونکہ وہ اس کا منگیتر ہے۔ اچھا، اتنی اچانک سب خیریت ہے؟ شراحیل کی اگلی بات پر الاف نے گہرا سانس بھرا تھا۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا تم کہو گی مجھ سے ملے بنا جاؤ گے۔ تم کبھی وہ نہیں کہتی جو میں سوچتا ہوں۔ مطلوبہ جگہ بس آنے ہی والی تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر جھکا کر ونڈ اسکرین سے باہر جھانکا۔ میں نے اگلی بات یہی کہنی تھی، تم مجھ سے ایک قدم آگے نہیں چڑھو گے تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ کہو تو لاہور نہیں جاتی، واپس آ جاتی ہوں، ورنہ تم نے تانے دے دے کر میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ شراحیل ناک سے آواز نکال کر مسکرایا، کیونکہ الاف اپنی بات ختم کرنے کے بعد خود بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ بہت بری ہو تم، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ الاف کی اگلی بات پر شراحیل کا دل پھولوں سے بھر گیا، تشکر سے پلکیں جھکی اور لبوں پر مسکان آن دوڑی۔ الاف کی بات یہ تھی، اب جو بھی ہوں آپ کی ہی ہوں۔ اس کا دل سرشار ہوا تھا۔ دعا اگر فیس ہو تو خوشیاں اور نیک بختیاں ہر لمحہ قسمت کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ شراحیل نے ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کا سوچا تھا، اس کا اجر اسے بہت بڑا مل رہا تھا۔ ان کے 8 سال پرانے رشتے میں آج پہلی بار محبت پھوٹی تھی۔ آج پہلی بار الاف کی طرف سے اسے خوشی ملی تھی۔ میری خوش بختی ہے، خوشی سے مغلوب لہجے میں کہا۔ الاف کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے اور کامیاب میٹنگ کے بعد وہ قریباً 9 بجے فارغ ہوا تھا۔ اب بس 1.5 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس سے پہلے اسے چاچو سے ضرور ملنا تھا۔ تبھی وہ فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر ان کے گھر کی اور روانہ ہو گیا۔ جانتا تھا اب تک الاف لاہور پہنچ بھی گئی ہوگی۔ کوئی نہیں، یہ ایک طرح سے اس کے لیے اچھا بھی ہے۔ ماحول بدلے گا تو اس کا موڈ بھی بدلے گا۔ وہ ان کے گھر کے قریب پہنچا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر بل آن سمائے۔ چوکیدار کہاں ہے؟ اس نے گاڑی گیٹ کے اندر ڈالی۔ فورش میں کار کو لے جانے سے پہلے ہی وہ زخمی چوکیدار کو دیکھ چکا تھا۔ گارڈز کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ اجرت میں کار سے باہر آیا اور زخمی گارڈ کی سمت لپکا۔ ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کون آیا تھا یہاں؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھ رہا تھا جو نیم بے ہوش سا تھا۔ انہیں زیادہ چوٹ نہیں پہنچائی گئی تھی، ہاں صاف دکھتا تھا کہ وہ کسی ایسے انجیکشن کا شکار ہوئے ہیں جس نے ان کی قوت کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اتموے سے وہاں پڑے تھے۔ شراحیل انہیں چھوڑ کر اندر کی طرف دوڑا۔ لاؤنج عبور کرنے کے بعد وہ آوازیں لگاتا ہوا آگے بھاگ ہی رہا تھا کہ ڈرائنگ روم کے باہر ایستادہ زرینہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بے قراری سے ان کی طرف مڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کے نچڑے چہرے پر نگاہ ڈالے پوچھ رہا تھا۔ اس کا روم روم سراپا سوال تھا۔ غفور صاحب تو گویا ایسے بیٹھے تھے جیسے مومی مجسمہ ہو، اور کیا وہ تھے؟ ہاں ہاں،
جو ठोकर दिल को लगी थी उसने उन्हें बुत बना दिया था। अब तो ये बुत शिकन का काम था कि वो उसे तोड़ दे और उसमें से वही पुराने वाले गफूर साहब को निकाल दे। लेकिन क्या बुत शिकन कर पाएगा ये? समर इस काबिल रहा है अब? यकीनन नहीं। क्या हुआ है? सब ठीक है? खुदा रहा कुछ बोले, मैं परेशान हो रहा हूँ। जरीना ने हिचकी भरते हुए आंसुओं को गालों पर से साफ किया और आई बॉल उसकी तरफ घुमाई, जो कभी उन पर तो कभी गफूर साहब पर नजर डाल रहा था। इंसान को उसके अमालों का हिसाब देना पड़ता है। जरीना से पहले गफूर की आवाज़ ड्राइंग रूम की खामोशी में उभरी थी। शराहिल भवों को आपस में मिलाकर उन्हें सुन रहा था, जो मजीद कह रहे थे। कुछ को आखिरत में तो कुछ को दुनिया में। खामोश दबीज खामोशी, दिलखराश, चीखती चिंगाड़ती, रोती कुर्लाती खामोशी। बहुत सालों पहले जब मैंने कई नाइंसाफियां की, कई गलत फैसले किए, बेतहाशा लोगों की जिंदगियां अपने इंसाफ के हथौड़े तले कुचल दी, उनकी आंखों को जूतों तले रोन दिया। हाँ, तभी की बात है। मेरा बेटा मरा था, मेरा राहिम कत्ल हुआ था। शराहिल नासमझी से अपने इतने सॉफ्ट स्पोकन और कंट्रोल्ड अंकल को यूं टूटते हुए देख रहा था जैसे वो भुरभुरी मट्टी हो, और वो थे भी तो सही। वो क्या, हर इंसान भुरभुरी मट्टी ही से तो बना है, कच्चे रेत के टीले की मानिंद, जो हल्की सी जरब से, हल्के से झटके से सेकंड में जमीन बोस होता है और फिर उसी का होकर रह जाता है, जिसे बका हुई उसी में फना भी। मेरी बेटी पागल हुई थी, दुनिया कहती थी ये अब कभी नॉर्मल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे गुनाहों के बोझ तले उसका दिमाग दब कर रह गया था। वो रो दिए थे, वो ऊंचे पूरे मर्द औलाद के गम में रो दिए थे। वो औलाद जो उनके वजूद का हिस्सा थी, जो उनमें से थी और उनमें ही रह गई। मैंने तौबा की वो ठीक हो गई, लेकिन आहें इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ करती। उनका असर ताहयात रहता है। मेरा एक बेटा कत्ल हुआ शराहील, और बेटी को पागल कर दिया गया। जानते हो उसके पीछे किसका हाथ था? वो ट्रांस की कैफियत में नफी में सर हिला रहा था। ब्लू बेल्स जमीन पर गिरे थे, उनकी खुशबू लाउंज में जलती मोमबत्ती की खुशबू से ज्यादा थी। लेकिन अब वो मर रहे थे, रफ्ता रफ्ता लेकिन मुसलसल। समर का। और शराहील को लगा जैसे पूरा आसमान उसके सर पर आन गिरा हो। वो आंखें फाड़े उस इंकशाफ को सुन रहा था। उसकी सांस शायद रुक चुकी थी। राहिम, उसका भाई, उसका दोस्त, उसकी आंखों के सामने आन समाया। वो बात जो हमने एक अरसा भुलाई रखी, वही बात आज कोई हमारे सामने दोहरा गया। वो हमारे जख्म को उधेड़ गया। आंखों पर हाथ रखे वो रोते हुए हिलते वजूद के साथ कह रहे थे। जरीना की जुबान अभी भी तालू से चिपकी थी। 10 साल पहले का सदमा आज फिर उन्हें पहुंचा था। उनकी आंखों में गुज़श्ता 10 साल पहले के मनाजिर थे। वो 10 साल जिन्हें उनके प्यारे राहिम ने छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत कैद किया हुआ था। वो लम्हात जिनमें वो जीता था, हंसता मुस्कुराता था। उनका प्यारा राहिम, दिलखराश 10 साल। वक्त ने करवट बदली और माजी की चादर खुद पर तान ली। वो माजी जो हसीन भी था और जालिम भी, कमाल भी था और वबाल जान भी। वो माजी जो राहिम और अदा का था। वो माजी जो ऐबक और इलाफ का था। वो माजी जिसका विलन समर था। आओ, आप सबको लेकर चलो वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था।